Good morning, 10th standard. Today we are going to start with chapter 5 from your SS textbook, India's Heritage of Science and Technology. Now, when we talk about science and technology, first let us understand what is the meaning of science and what is the meaning of technology, right? Science का मतलब होता है knowledge. Science का मतलब क्या होता है? Knowledge, theoretical knowledge, right? अब ये जो थियोरेटिकल नॉलेज जो आपको मिली है, द नॉलेज व्हाट यू हैव गॉट, व्हेन यू अप्लाई दैट, जब हम उसको यूज करते हैं, व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज, तो हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, है ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, राइट? और वी कैन से प्रैक्टिकली यूजफुलनेस ऑफ दैट नॉलेज or practical utility of systematic knowledge, that is called as technology. ठीक है? साइंस का मतलब क्या होता है? theoretical knowledge, and technology का मतलब होता है to apply that theoretical knowledge into practical, right? उसको जो है apply जब हम करते हैं, that is called as technology. Okay, so now let us move towards what is India's heritage of science and technology. The discoveries and inventions in the field of science and technology have brought countries of the world closer. Cooperation among all the nations has increased, hence attitude has developed. Countries have become oriented towards peaceful coexistence and world peace. We always say the world has become like a small family, right? Why the world has become like a small family? Because of the discoveries and inventions in the field of science and technologies, है ना? अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है. इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेलियर का एक कारण ये भी था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था सबसे, राइट? तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे जैसे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होते जा रहे हैं, हम क्या होते जा रहे हैं, हम जो है द वर्ल्ड इज श्रिंक होता जा रहा है. वर्ल्ड क्या होता जा रहा है? श्रिंक होता जा रहा है. आज देखो आपके पास जो ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, राइट, जो मोबाइल है, राइट, तो ये सब आप देखो फेस टॉक कर कर हम जहाँ पर भी बैठे हैं हम किसी से भी बात कर सकते हैं. अभी रिसेंटली अभी इस सिचुएशन में तो ऑनलाइन जो स्टडीज़ चल रही हैं, तो आज ये सब इन्वेंशंस हुआ है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इजी फॉर अस. Even it is easy for the rural children, you know, the students who are in the rural areas. गांव में जो बच्चे बैठे हैं वो भी because of this technology वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, राइट? सो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस जो होते हैं वो ऑलवेज कंट्रीज को क्लोजर लेकर आते हैं और हर एक कंट्री को डेवलप करते हैं. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में हो रही है और हुई थी. साइंस मीन्स, जो अभी मैंने आपको बताया, साइंस मीन्स नॉलेज and technology means practical utility of systematic knowledge. That is why it says that science and technology always work together, though they are different. Though they are different. Why they are different? Science is theoretical and technology is practical. But obviously, though they are different, but they are linked together. If you don't know theory based, you will not be able to do practical. And practical is always linked with theory, right? So science and technology are two sides of one coin, we can say like that. And in spite of being two different birds, they are linked to each other. Now let us move towards the heritage of ancient India in the field of science. The great sages of our ancient India have gifted invaluable heritage of science to the world. अब हमारे जो ग्रेट सेजेस थे, सी जो हम अगर साइंटिस्ट की बात करते हैं,
या एस्ट्रोनॉमर्स की बात करते हैं, तो हमारी एंशियंट इंडिया में जो सेजेस होते थे, राइट, वो ही स्कॉलर्स वगैरह होते थे, है ना। तो लेट अस सी कि उन लोगों ने वर्ल्ड को क्या इनवैल्यूएबल हेरिटेज दिया है साइंस की फील्ड में। They have made outstanding contribution in the field of metallurgy, chemistry, science of medicine, surgery, mathematics, astronomy, astrology, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। अब इमेजिन करो, मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी ऐसा फील्ड बाकी नहीं रहा जो हम लोगों के सेजेस ने जो है गिफ्ट नहीं किया टू द वर्ल्ड। मेटल्स पे, केमिस्ट्री, मेडिसिन में, सर्जरी में, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स। हम ऑलवेज ये सोचते हैं कि मेडिसिन तो अभी आया है, मैथ्स तो अभी आया है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र तो है वो तो अभी आया है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट। कई बार होता है ना कि हम लोगों ने किया लेकिन वी डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। हमारे ग्रेट सेजेस ने बहुत बड़ा इनवैल्यूएबल गिफ्ट दिया, but we did not take care of that, or we did not utilize that, and the other people utilized it. Other people, I'm talking about the westerns, right? और वो वेस्टर्न कंट्रीज को देखकर अब हम जो है यूज कर रहे हैं, और अब हम सोच रहे हैं शायद वाओ व्हाट इज दिस इज गुड। अगर मैं सिंपली अभी बात करूं वास्तुशास्त्र की, तो आजकल हर लोग जो है वास्तुशास्त्र पे बिलीव करने लग गए हैं। तो वास्तुशास्त्र का मतलब ये थोड़ी कि अभी आया है, अब हम वेस्टर्न कंट्रीज क्योंकि फॉलो करती है तो हम वी आर फॉलोइंग, सॉरी टू से दिस, बट उनको देखकर शायद हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर इफ यू एक्चुअली गो टू सी हमारे गाँव के घर, हम सब के घर है गाँव में, या हमारे जो टेम्पल्स है, अगर हम उन सबको देखेंगे ना तो वो सब जो है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं, राइट। So let us begin. It is a matter of great pride for us. India has contributed not only in the field of literature, art, religion, education, and philosophy, but also it has made immense contribution in the field of science and technology. हर बार ऐसा बोला जाता है कि इंडिया तो एक फिलोसफिकल कंट्री है, इंडिया तो एक रिलीजियस कंट्री है। डेफिनेटली वी फील प्राउड, राइट, एंड वी टेक प्राइड इन कि हमारी कंट्री जो है वो रिलीजियस कंट्री है और फिलोसफिकल कंट्री है। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया का इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Modern age researchers have proved that India has scientific attitude along with religious outlook. जो हमें बोला जाता है, as I said, कि religious outlook के लिए ही हमें जाना जाता है, but today we are going to study that हमारी इंडिया का scientific attitude अभी नहीं from beginning था, और ये modern age researchers ने prove किया है कि from beginning India had scientific attitude. Metallurgy. Since ancient age, people of India use metals in their practical life. Ancient India made extraordinary progress in the field of metallurgy. अब मेटालिक, अभी एग्जाम्पल्स हैं कैसे पता चलता है कि हम लोगों ने एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोग्रेस किया था मेटल्स में। A metallic idol of female dancer which has been discovered in the Indus Valley civilization is an exemplary achievement of ancient India. From day one when we started studying history in 10th standard, I told you कि जो कुछ भी डिस्कवरीज होती है, जो भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, राइट, और जब हमारा मतलब सर्वे होता है, एक्सकैवेशन होता है, डिस्कवरीज जो होती हैं, उसमें जो भी हमारी पुरानी चीज़ें निकलती हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम लोग किस तरह के थे, कैसे थे, क्या यूज़ करते थे, है ना। वी हैव स्टडीड। सो उसी तरह ही मेटालिक आइडल ऑफ मतलब फीमेल डांसर की एक मेटल की बनी हुई मूर्ति है जो इंडस वाली सिविलाइजेशन में डिस्कवर हुई थी। तो पता चलता है कि इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम पर मेटल यूज होता था। लेटर स्टैचूज ऑफ बुद्धा belonging to the Kushan period have also been found at Takshashila.
In South India, during the Chola period, numerous metal idols were also found and were made. Statue of Nataraj, जिसको हम बोलते हैं, it is also a masterpiece in sculpture, is famous all over the world. It is preserved in the museum at Chennai. Even we have found a metal idol of Ram the Archer. Ram the Archer can be seen in the museum. Artistic statues of gods and goddesses, birds, animals, and beetle nut cutter. Beetle nut cutter क्या होता है? वो सुपारी काटने वाला होता है ना. I don't know whether you people have seen, लेकिन हम लोगों के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, वो अगर कोई सुपारी वगैरह खाता था तो उनके हाथ में है ना वो सुपारी कटर होता था, है ना, तो वो मेटल का ही होता था. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स शो दैट मेटल वाज very well used in their practical life during the ancient age, are considered to be the best example of metallic art. All of them have important place in the history of India. तो metal अभी नहीं आया है, ancient age से है. Chemistry. Alchemical lore. Chemistry is an experimental science. जब हम chemistry की बात करते हैं तो obviously we talk about many experiments. This science is very useful in various minerals, plants, seeds for agriculture, making various metals, or to even bring changes in them. It is useful in making medicines. अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे यूजफुल इन मेडिसिन, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट लेट अस रीड. आचार्य नागार्जुन जो थे, he was called a learned Buddhist. आचार्य नागार्जुन कौन थे? He was a learned Buddhist of Nalanda University, right? He is also known as Acharya in the field of chemistry. हम लोग बोल सकते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं specialized, right? He was specialized in chemistry. He has written books like Ras Ratnakar and Arogya Manjari. He had written books like Ras Ratnakar and Arogya Manjari. Acharya Nagarjun advocated the use of allopathy along with herbal medicines. हम एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं कि नहीं, right? तो आचार्य नागार्जुन जो थे, he told us about, or he gave us a knowledge about allopathy along with herbal medicines. It is believed that the use of mercury ash as a medicine was initiated by him. Mercury ash जो यूज होता है मेडिसिन में, बहुत छोटे से वॉल्यूम में या बहुत छोटा सा ही, थोड़ा सा ही यूज होता है, बट दैट वाज इनिशिएटेड बाय हुम? आचार्य नागार्जुन. मतलब उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया और बताया कि मर्क्यूरी ऐश जो है वो मेडिसिन बनाने में यूज होता है. Nalanda University had its own school of chemistry and furnace for study and research. राइट, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उनके पास खुद के हम बोल सकते हैं लेबोरेटरीज थी, फर्नेस था, रिसर्च के जो है मतलब रिसर्च भी वो लोग करते थे. द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ras upras, 10 types of poisons as well as various types of salts and ashes of minerals is seen in chemistry. This we are talking about acids, base, salts, alkanes जो आप chemistry में पढ़ते हो, right? वो सारी चीज़ें जो थी जो chemistry में, obviously these are the main fundas of chemistry, वो सब जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में बताई जाती थी, रिसर्च किया जाता था और वो लोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे. ऑब्वियसली है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करने ही पड़ेंगे और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए रस, उपरस, पॉइजन्स, असॉल्ट्स, इन सब का यूज होता ही है. Copper statues of Buddha reflect an expert knowledge and skill in the field of chemistry. The copper statue of Buddha discovered from Sultanganj in Bhagalpur district of Bihar is 7.5 feet high and weighs 1 ton.
अब ये जो है ये आप अंडरलाइन कर सकते हो। कॉपर स्टैचू जो है वो कहाँ पर डिस्कवर हुई थी? सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और कितनी बड़ी है? 7.5 फीट हाई और उसका वेट कितना है? 1 टन का। द स्टैचू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज 18 फीट हाई। अब जो स्टैचू ऑफ नालंदा जो है स्टैचू ऑफ बुद्धा जो है वो नालंदा में कितनी है? 18 फीट हाई है। This is an execute example of Vijay Stham, the 24 feet high iron pillar. अब ये जो विजय स्तंभ जो है उसकी हाइट क्या है? 24 फीट हाई है. इट इज एन आयरन पिलर विच weighs 7 tons and it was built by Chandragupta II. In spite of nature's fury, over centuries, the pillar has not yet corroded. This is the best example of alchemical lore of India. अब ये examples इसीलिए बताए हैं, रस्ट का एग्जाम्पल बताया है ना, रस्ट बताने के लिए। कहने का मतलब ये जो विजय स्तंभ है, राइट, या जो आयरन पिलर है, राइट, जो हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे बना हुआ है। अब चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे यानी हम बात कर सकते हैं मैनी 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 सेंचुरीज अगो, है ना। अब आप पिक्चर में भी देख सकते हो। और ऑब्वियसली है ये जो आयरन पिलर जो है ये बीचों बीच जो है, आप देखो यू कैन सी इट इन द मिडल, राइट, दिल्ली में बीचों बीच है। अब ऑब्वियसली है कि नेचर्स फ्यूरी यानी सर्दी गर्मी बारिश, ऐसा तो नहीं हम उसको निकाल कर रख सकते हैं और वापस लगा सकते हैं, नहीं ना, दैट वाज जस्ट अ जोक। लेकिन इतने सेंचुरीज के बाद भी इसको जंग नहीं लगी है, राइट। और आजकल का हम अगर कुछ भी आयन लेते हैं, आप अगर नेचर्स फ्यूरी में रखो, अगर बाहर रख दो, थोड़ा धूप पड़ता है, थोड़ी उस पर बारिश पड़ी या ऐसा कुछ, आप 2 दिन 3 दिन के बाद देखो जंग लग जाता है, राइट। सो दैट शोज कि इट वाज सच अ वंडरफुल आयरन, मतलब उस टाइम का जो आयरन जो था कितना अच्छा था, विच हैज नॉट येट बीन क्रोडेड इवन आफ्टर मैनी सेंचुरीज। This is the best example of chemistry lore of India. Now comes science of medicines and surgery. इस चीज़ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें ऑलवेज लगता है कि अब मॉडर्न एज में बहुत सारी सर्जरी स्टार्ट हुई हैं, लोग जो है फॉरेन से पढ़कर आकर सर्जन्स बने हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा आई हैं, नो डाउट आई हैं, डिस्कवरीज वगैरह होती रहती हैं, राइट, पहले भी हुई हैं, अभी भी होती है और होती रहेंगी। डिस्कवरीज का मतलब ही होता है कॉन्टिन्यूस, राइट, इन्वेंशंस का मतलब ही होता है कॉन्टिन्यूस। बट इसका मतलब ये नहीं था कि पहले मेडिसिन नहीं थी या सर्जरीज नहीं होती थी। अगर सर्जरीज नहीं होती थी तो क्या लोगों के पास पहले ओके तो क्या पहले क्या है, लोग जो है बीमार नहीं होते थे या उनको डिजीजेस नहीं होते थे? सो इट इज सेड कि पहले क्या लोग बीमार नहीं होते थे या पहले जो है नीड नहीं हुई सर्जरी की या मेडिसिन की, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो लेट अस सी कि आपको ये जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो एज इट वॉज मैंशन बिफोर ना, हर साल ऐसा फील होता है, मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाती हूँ मुझे ऐसा बहुत प्राउड फील होता है दैट आई एम एन इंडियन, और मेरी इंडिया में इतना कुछ पहले हो चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना सारा कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री ने दिया है, राइट। सो लेट अस रीड Science of Medicine and Surgery. India attained an unprecedented achievement in the field of medicines and surgery. Since ancient period, Maharshi Charak, Maharshi Sushruta, and Vagbhat, they pioneered the Indian medicines, science and surgery through their intense researches and reached to the greatest height. तो ऐसा अभी आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है हम ही पढ़ाई कर रहे हैं, हम ही रिसर्च कर रहे हैं, राइट, पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इट इज़ नॉट सो। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, वाघभट जो थे, उन लोगों ने भी बहुत सारे रिसर्चेस किए एंड देयर रिसर्च जो है इट रीच द ग्रेटेस्ट हाइट। और उन्होंने अपनी बुक जो लिखी
उस बुक में उन्होंने क्या मेंशन किया है? महर्षि चरक हैज रिटन अ बुक कॉल्ड चरक संहिता. What is the name of the book? Charak Samhita. Charak Samhita is written by Maharshi Charak, in which he has mentioned over 2000 medicinal herbs. उनकी बुक में क्या लिखा हुआ है? 2000 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ है जिससे हम ठीक हो सकते हैं. मेडिसिनल हर्ब्स यानी हर्ब्स विच एक्ट एज मेडिसिन, विच वर्क एज मेडिसिन, जो आज तक भी हम यूज करते हैं. Maharishi Sushruta, he has mentioned about instruments used in surgery, right? तो जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो टूल्स जो यूज होते हैं सर्जरी में, उनके बारे में लिखा हुआ है. एंड लेट अस रीड. The instruments were so sharp that they would split a single vertical hair in two division. मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स का मेंशन किया है, राइट, वो ये बता रहे हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे सर्जरी में वो इतने शार्प होते थे कि वन सिंगल स्ट्रैंड, हमारा एक बाल, जस्ट वन हेयर, राइट, वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक बाल जो होता है वो कितना पतला होता है ना, राइट? सो वी कैन जस्ट स्प्लिट दैट हेयर इनटू टू डिविजन. यू नो, वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर could be split into two division. तो आप सोच सकते हो कि कितने शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होंगे. आप देखो, जब भी सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर शार्प, क्योंकि जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हम सिंपल स्किन की बात करें तो स्किन में लेयर्स है, राइट? तो जब डॉक्टर या सर्जन जब सर्जरी करता है तो ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सिजर लिया, कट कर दिया तो सारे के सारे लेयर्स ऑफ स्किन कट कर देंगे. नहीं, ऐसा तो पीपल माइट डाई ड्यूरिंग द सर्जरी, राइट? उनको बहुत केयरफुली एवरी लेयर दे ओपन. इट डिपेंड्स अपॉन कहाँ पर वो सर्जरी कर रहे हैं, राइट? सो इट इज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट. तो उनके आप समझ सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट्स कितने शार्प होंगे, राइट? सो हियर ऑल्सो महर्षि सुश्रुत हैज मेंशन कि उस टाइम पर भी जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे दे वर वेरी शार्प. और वो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स कितनी शार्पनेस उन्होंने बताई है कि एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर को भी वो टू डिवीजन में डिवाइड कर सकते थे. वाघभट्ट हैज रिटन अ बुक वाघभट्ट संहिता, राइट? अब उन्होंने क्या मेंशन किया? इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाघभट्ट संहिता इज वेरी यूजफुल फॉर डॉक्टर्स. अब ये जो तीन थे, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाघभट्ट, उनका जो वर्क है, राइट, द बुक, द वर्क विच इज रिटन बाय देम, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाघभट्ट संहिता, जो है ये बहुत यूजफुल है डॉक्टर्स के लिए. Hindu herbal science of ancient time is enriched with huge collection of minerals and medicines from plants and animals. और ये जो हम हर्बल साइंस की बात करें, हर्बल मेडिसिन की बात करते हैं, तो दे आर, मतलब ये जो बुक्स है वो हमें बताती हैं कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो कितने इनरिच्ड हैं इन दिस हर्ब्स, राइट? और ये हर्ब्स वगैरह के कारण जो है हमारे, मतलब वी कैन गेट मेडिसिन, मिनरल्स एंड मेडिसिन जो है वी कैन गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. This has presented a detailed and complicated process of making medicines, their classification and their usage. They can even stop blood circulation with bowl-shaped bandage. They could skillfully operate on abdomen, kidney, cataract, hernia, stone, piles and bladder. अब ये जो आजकल हम ये सारे ऑपरेशंस आज भी होते हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस पहले भी होते थे, राइट? वो सर्जरी जो है बहुत स्किलफुली जो है ऑपरेशन करते थे, अब्डोमेन में, पेट पे करते थे, किडनी में, कैटरैक्ट का करते थे, हर्निया का करते थे, स्टोन्स का करते थे, पाइल्स का करते थे और ब्लैडर का करते थे. They could classify also the joint or
or displace bones and extract the things pierced into the body easily and skillfully. यानी जो हम बोलते हैं कि स्प्रेन हो गया या मतलब वो बोन टूट जाता है, राइट? तो वो सब का भी they would join the broken and displaced bones also. They could easily pierce things into the body, right? Recognize symptoms and diagnose the disease. मतलब अगर बॉडी में कुछ पियर्स करना है तो वो पियर्स भी करते थे स्किलफुली, वो सिम्टम्स को जो है रिकग्नाइज करते थे और उस सिम्टम्स को रिकग्नाइज करने के बाद उस डिजीज का इलाज भी होता था. दे वुड डायग्नोज द डिजीज ऑल्सो. They also gave dietary directions after post recovery of diseases. और डिजीज के ठीक हो जाने के बाद वो डाइट्री यानी कि क्या खाना चाहिए उसका वो लोग डायरेक्शंस भी देते थे, यानी जो हेल्प करते थे कि व्हाट वी शुड ईट. अब ये सारी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो वी वंडर ये सब तो आज के डॉक्टर्स भी करते हैं और हम बोलते हैं आजकल के डॉक्टर्स बहुत मॉडर्न है, नो डाउट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पहले ऐसा कुछ था ही नहीं. नहीं, पहले भी था और ये सारी चीजें होती थी. आई होप यू रिमेंबर द फर्स्ट चैप्टर वी डिड एंड वी सेड हेरिटेज एक ऐसी चीज होती है जो कंटिन्यू होता जाता है, राइट? वी हैड स्टडीड व्हाट इज हेरिटेज. तो जब हम हेरिटेज की बात कर रहे हैं, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इंडिया का हेरिटेज में, so things which were done previously और जैसे जैसे न्यू जनरेशन आता जाता है वो न्यू जनरेशन उसी में ही ऐड करके कंटिन्यू करता जाता है. That is the definition of heritage, right? So all these things were done even before. They had knowledge of plastic surgery as well, joining nose and ears. Just imagine this. And we feel कि अभी होता है, राइट? जो द पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी या सेलिब्रिटीज है वो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवा देते हैं, या अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कई बार वो एसिड अटैक वगैरह प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर भी होती थी. They showed a keen interest in teaching students the method of surgery by doing surgery on the dead body or on the wax statue. That even the students were taught to do surgery. And how were they taught? They were taught to do surgery on the dead body or on the wax statue. They conducted risky operation during delivery. They were expert gynecologists and pediatricians. Gynecologist is a uh, women's doctor, right? And children's doctor. Veterinary science, veterinary matlab जो animal doctor who deals with animals or cures animals, has also developed in ancient India. They wrote books on diseases related to horses and elephants, among them Hasti Ayurved, Shalihotra and अश्वशास्त्र आर वेल नोन. क्योंकि उस समय तो बहुत सारे राजा महाराजा थे, तो बहुत सारे घोड़े, एलिफेंट, सब एनिमल्स होते थे और फार्मर्स के पास कैटल्स होते थे, तो ऑब्वियसली ये वो सारे एनिमल्स भी बीमार पड़ते होंगे, राइट? तो उनको भी क्योर किया जाता था. द स्कॉलर्स एंड साइंस writer of medicine Vaghabhatta made valuable contribution through his work Ashtang Hirday in the field of diagnosis, right? And Ashtang Hirday, it is written by whom? It is written by Vaghabhatta.